Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Sehrish and welcome to my channel Learn with Sehrish. I hope you all would be fine and doing great. So today I'm going to start a new chapter which is organic spectroscopy, and this chapter the first topic, which is UV visible spectroscopy, we are going to study it today. So what is UV visible spectroscopy? It consists of two words. One is UV visible and the other is spectroscopy. UV visible is the light which is used in this spectroscopy, and spectroscopy is the interaction of light with matter. So that type of spectroscopy in which UV visible light is used is called UV visible spectroscopy. Okay. So as we already studied that interaction of light with matter is called spectroscopy. Now what is light? Light is electromagnetic radiation such as gamma rays, X-rays and UV rays. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जो कि gamma rays, X-rays और UV rays पर मुश्तमिल होती है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी डेवलप की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कि ये दो तरह से बिहेव करती है, एक एज अ वेव एंड दूसरा एज अ पार्टिकल, और इसको वेव पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं। सिमिलरली एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल लाइट इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग मैटर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लाइट यूज़ होती है मैटर को स्टडी करने के लिए उसको यूवी विजिबल लाइट कहते हैं। इसी वजह से इसको नाम भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया है। ओके, नाउ व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है जिसको स्टडी करने के लिए यूवी विजिबल लाइट यूज़ होती है? मैटर इज़ एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए एंड केमिकल कंपाउंड्स। मैटर कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। इस तरह से मैटर कोई भी केमिकल कंपाउंड भी हो सकती है जिसको स्टडी करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है। Okay. Now what is electromagnetic spectrum? So when electromagnetic radiations are arranged on basis of wavelength and studied in form of waves, so as a result a spectrum is formed which is called electromagnetic spectrum. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेवलेंथ के बेस पे अरेंज किया जाता है, फॉर एग्जांपल शॉर्टर वेवलेंथ टू लॉन्गर या फ्रॉम लॉन्गर वेवलेंथ टू शॉर्टर, सो एज रिज़ल्ट एक स्पेक्ट्रम बन जाती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर गेमा रेस होते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो गेमा रेस की वेवलेंथ शॉर्टर होती है जबकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ लॉन्गर होती है। तो इसी तरह से इसको अरेंज किया जाता है तो एक स्पेक्ट्रम बन जाता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेट्स सी इन द डायग्राम। Okay, so this is the electromagnetic spectrum in which the rays are arranged on the basis of wavelength from shorter wavelength to longer wavelength. Gamma rays, X-rays, UV rays, visible light, infrared, microwaves and radio waves. Similarly, visible light consists of 7 colors which is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So this is called electromagnetic spectrum. Okay, now let's move toward the instrumentation of UV visible spectroscopy. UV visible spectroscopy की इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, कौन कौन से पार्ट्स पर ये मुश्तमिल होती है? सो नंबर फर्स्ट इज़ लैम्प, नंबर सेकंड इज़ मोनोक्रोमेटर which consists of 2 slits and 1 prism which collectively called as a monochromator. Third one is reference cell and sample cell. Fourth one is detector and fifth one is recorder. Okay, so this is the instrumentation or construction of UV visible spectroscopy. The first part is the lamp which produces light from 200 to 800 nanometer. From 200 to 400 nanometer the light is called UV which we can't see through naked eye. From 500 to 800 nanometer the light is called visible
and we can see it through naked eye. So the second part is monochromator, which consists of three parts. First is entrance slit, second is prism, and third is exit slit. एंट्रेंस स्लिट का काम यह है कि लैंप से जो लाइट प्रोड्यूस होती है तो वो इससे पास करे और उसको इक्वली बराबर तरीके से उसको प्रिज्म पे फॉल करे। फिर प्रिज्म का फंक्शन ये है कि उस लाइट को पॉलीक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करे। पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो कि 7 कलर्स पे मुश्तमिल होती है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सिमिलरली फिर एग्जिट स्लिट। सो एग्जिट स्लिट का काम ये है कि एक लाइट जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होती है उसको पास करे फ्रॉम एग्जिट स्लिट। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि वो जो लाइट होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और 1 पार्ट जो होती है वो रेफरेंस सेल पे पड़ती है और दूसरी पार्ट जो होती है वो सैंपल सेल पे पड़ती है। रेफरेंस सेल जो होती है ये क्वार्ट्स या ग्लास से बनी होती है और इसमें ब्लैंक सोल्यूशन ली जाती है। इसी वजह से जो इंटेंसिटी की लाइट इस पे पड़ती है तो सेम इंटेंसिटी की लाइट इससे पास होती है। कोई भी लाइट इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि इसमें सैंपल नहीं होता, इसमें सिर्फ ब्लैंक सोल्यूशन होती है जो कि स्टैंडर्ड होती है। जबकि सैंपल सेल इसमें सैंपल होती है, जब लाइट इस पे पड़ती है तो इसमें एब्जॉर्प्शन होती है और इससे जो बाकी जो लाइट पास होती है तो वो लो इंटेंसिटी की होती है क्योंकि कुछ लाइट जो होती है तो वो सैंपल ने एब्जॉर्ब की होती है और बाकी लाइट इससे पास हो जाती है। अब जो दोनों पास लाइट जो होती है रेफरेंस सेल से और सैंपल सेल से वो जाके डिटेक्टर पे पड़ती है। ओके, सो सैंपल जो फॉर एग्जांपल इसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन जैसे कि अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होती है और सम प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन विच कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। सो वो अमाइनो एसिड जो होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, जो लाइट इस पे पड़ती है, और लाइट को किस चीज़ के लिए एब्जॉर्ब होती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मीन के इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फ्रॉम लोअर टू हाई एनर्जी स्टेट। अब डिटेक्टर का काम ये है कि जो लाइट रेफरेंस सेल और सैंपल सेल से आई होती है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेती है एक दूसरे से, कि मतलब सैंपल सेल ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की होती है, जबकि रेफरेंस सेल की जो लाइट होती है वो वही की वही होती है, तो उससे उसको सब्ट्रैक्ट करती है और जो लाइट उससे आती है उसको ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं और उसी के बेस पे फिर एब्जॉर्बेंस मालूम की जाती है। फिर जो डेटा होती है वो डिटेक्टर फर्दर रिकॉर्डर को सेंड करती है और रिकॉर्डर उसको ग्राफ फॉर्म में डिस्प्ले करती है। ओके, सो दिस वाज द होल वर्किंग ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कैसे लाइट आती है, एंट्रेंस स्लिट से पास होती है, फिर प्रिज्म उसको कैसे पॉलीक्रोमेटिक लाइट में चेंज करती है, फिर एग्जिट स्लिट कैसे उसके एक सेम वेवलेंथ की लाइट उससे पास करती है, फिर उसको डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स में जो लाइट डिवाइड होती है दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, बिल्कुल सेम वेवलेंथ की होगी, और एक पार्ट रेफरेंस सेल पे पड़ती है, दूसरी पार्ट जो होती है वो सैंपल सेल पे पड़ती है। रेफरेंस सेल से सेम वेवलेंथ की लाइट पास होती है, जबकि सैंपल सेल से कुछ लाइट उसमें एब्जॉर्ब होती है और लो इंटेंसिटी की लाइट उसमें पास होती है। फिर डिटेक्टर उसको सब्ट्रैक्ट करता है, जो बाकी की लाइट आती है जो सब्ट्रैक्ट हुई होती है उसको ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं और उसी लाइट को वो फिर रिकॉर्डर में पास करते हैं, रिकॉर्डर उसको ग्राफ फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस इज़ द होल प्रोसीजर जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मतलब फर्स्ट पार्ट लैम्प होती है जो कि लाइट को प्रोड्यूस करती है 200 to 800 नैनोमीटर। फिर मोनोक्रोमेटिक होती है जो कि प्रिज्म और 2 स्लिट्स पे मुश्तमिल होती है, और इसी तरह से इस फर्स्ट स्लिट का फंक्शन क्या है, प्रिज्म का फंक्शन क्या है, सेकंड स्लिट का फंक्शन क्या है, फिर रेफरेंस सेल क्या होती है, इसकी शेप किस तरह से होती है, किस चीज़ से बनी होती है, इस तरह से रेफरेंस सेल की फंक्शन क्या होती है, इसी तरह से फिर सैंपल सेल होती है उसकी फंक्शन, शेप और ये सारी चीज़ें जो कि हमने ऑलरेडी ही पढ़ी है। ओके, फिर एब्जॉर्प्शन जो सैंपल सेल ने की होती है, तो एब्जॉर्प्शन 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ कंसंट्रेशन एंड द सेकंड इज़ लेंथ ऑफ कवेट, पाथ लेंथ ऑफ कवेट।
ओके, बेयर-लैम्बर्ट लॉ क्या कहती है? दैट ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल. ए इज़ द एब्जॉर्बेंस, सी इज़ द कंसनट्रेशन एंड एल इज़ द पाथ लेंथ ऑफ कवेट. कवेट वो होती है जिसमें हम सैम्पल सेल या रेफरेंस सेल लेते हैं. ओके, तो बेयर एंड लैम्बर्ट, these were two scientists. According to Beer, if concentration increases then absorption would also be more. बेयर कहते थे कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ होगी. लैम्बर्ट said a path length of कवेट is more then absorption would be also more. According to लैम्बर्ट कि अगर एक कवेट की पाथ लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी. लेंथ उसकी क्या होती है? जो कवेट हम लेते हैं उसकी लेंथ पे डिपेंड करते हैं. अगर उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी. तो इसी तरह से कंबाइनली जब बेयर और लैम्बर्ट इसकी स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो उसको बेयर-लैम्बर्ट लॉ कहते हैं. सो कंबाइनली इट इज़ कॉल्ड बेयर-लैम्बर्ट लॉ which states that absorption is directly proportional to concentration and path length. तो इसका मतलब ये है कि absorption दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. फर्स्ट वन इज़ concentration and second is path length of cavity. Okay, this is the detector which we already studied. What is transmitted light? Already मैंने आपको बताया जो लाइट सब्ट्रैक्ट होती है उसको ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं. फंक्शन ऑफ रिकॉर्डर क्या होती है जो कि उसको डिस्प्ले करती है ग्राफ फॉर्म में. So this is the graph. So on x-axis there is wavelength which is denoted by lambda, and on y-axis there is absorbance. Okay, so there is shown that absorbance is on 280 nanometer and absorbance is there. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये ज़्यादा वैल्यू पे मतलब 300 नैनोमीटर पे अगर इसने एब्जॉर्बेंस दिया तो इसका मतलब ये है कि वही वाला लेम्डा मैक्सिमम होगा. नहीं है, लेम्डा मैक्सिमम वही होगा जिसकी एब्जॉर्बेंस हाई होगी, जिसकी एब्जॉर्बेंस वैल्यू हाई होगी जिस पॉइंट पे, तो उसको लेम्डा मैक्सिमम कहेंगे. वो पीक जहाँ पर सैम्पल ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करे तो उसको क्या कहेंगे? लेम्डा मैक्सिमम कहेंगे. जैसे कि ये पीक यहाँ पर लेम्डा मैक्सिमम ने ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो की है तो उसको क्या कहते हैं? ये वाला पॉइंट, तो उसको लेम्डा मैक्सिमम कहेंगे. ठीक है, ओके. So on basis of absorbance value concentration is calculated. Such type of spectroscopy is called quantitative spectroscopy because concentration is quantity. Absorbance की वैल्यू पे concentration कैलकुलेट की जाती है. तो इस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं ना, क्योंकि कंसंट्रेशन की जो वो है क्वांटिटी है ना कंसंट्रेशन, तो इसी वजह से इसको क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी. अ ग्राफ इज़ फॉर्म्ड विच इज़ बिटवीन वेवलेंथ एट एक्सिस एंड एब्जॉर्बेंस एट वाई एक्सिस. ये वाला ग्राफ के वो एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस है. Okay, so this is the question of molar absorptivity. A is equal to molar absorptivity BC. A denote absorbance, this one is molar absorptivity, B is length of light path, and C is concentration. So molar absorptivity is the measure of light, that how well it is absorbed by species. molar absorptivity क्या है? जब लाइट फॉल होती है सैम्पल पे तो सैम्पल में जो स्पीशीज़ होती है कि वो कितना इफ़ेक्टिवली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं. जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब ये है कि मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर. तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी उतनी ही ज़्यादा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होगी. सो आई होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा. एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरीज सो डू आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. Thank you so much for your precious time.